زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں اور میدان خطابت کی آپ کو سیر کراتا ہوں۔ حاضرین بزم، کسی نے یوں کہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوا کرتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوا کرتی ہے، اور ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ تامرد سخن نہفتہ باشد، عیب و ہنر نہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی کلام نہ کرے اس کے تمام عیوب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ ایک ایسے ہی مہمان خطیب بے مثال تشریف فرما ہے کہ جن کے خطبے سے آپ ان کے باطنی ملکے کا پتہ لگا لیں گے، جن کی تقریر سے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے گا، جن کے انداز تکلم سے ان کی متانت و سنجیدگی کا علم ہو جائے گا۔ جی میرا اشارہ ہے سابق ممبر ایم پی خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھتیجے ماہر سیاست و خطابت حضرت مولانا ڈاکٹر بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب سے، جو کہ سجادہ نشی ہوتے ہیں خانقاہ عالیہ چشتیہ گیا بہار کے، میں حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کرتے ہوئے زحمت سخن لینے چلا ہوں کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہیں۔ حضرت والا سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبوں کے قلوب کو منور اور مجلہ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اقرارا برسالته ووضوح وتبیانه اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن نصرہ وواہ صلاة وسلاما دائمین بدوام شریعته وخلود سنته وبیانه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الشفیق الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس امین امت محبوب ملت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا داؤد امینی صاحب متزلہ النورانی، پوری اسلامی شان و شوکت کے ساتھ آپ کی اس مبارک پاکیزہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ اس اجلاس کے روح رواں ہمارے رفیق درس نوجوان عالم دین ماہر درس و تدریس جناب حضرت مولانا عاقب ندوی صاحب مدظ اللہ العالی،
स्टेज पर मौजूद है। इस इजलास की निजामत फरमा रहे नकीब सदाबहार वाइज बरकबार जनाब हजरत मौलाना फिरोज साहब मद्दजिल्लहुल आली, नकीबाना शान शौकत के साथ स्टेज पर जलवाबार है। और इस स्टेज पर उलमा इकराम का नूरानी इरफानी काफिला, नौजवान शायर इस्लाम अंदलीब गुलशन रिसालत बुलबुल नगमा सिरा जनाब मौलाना आमिर मेवाती साहब की बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार और शाहकार नातिया गोई से आपने अपने आप को महफूज भी किया है और सादतें भी हासिल की है। जी तो ये चाहता है कि हमारे इस स्टेज पर और सामईन जितने लोग बैठे हैं हर एक का नाम लेकर अपनी गुफ्तगू का आगाज किया जाता, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर भी है, ज़हनगीर भी है, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा हर एक के हुजूर अदब से ये शेर पेश करता हूँ और अपनी बात का आगाज करता हूँ। शिकारे माह के तस्वीरें आफ्ताब करो, शिकारे माह के तस्वीरें आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किस का नाम लूं और किनका छोड़ दूं। जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। नबाज फितरत, हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, हस्साने बर्रे आज़म एशिया, अल्लामा डॉक्टर सर बैरिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। बहुत अच्छे। जरा खामोशी बनाइए भाई, जरा खामोश लाइए। मैं 10 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा। अभी 3:30 बजे हमारी फ्लाइट है, मैं कलकत्ता जाऊंगा और ये आपकी मोहब्बत है कि मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। बड़ी अदब के साथ मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें, फिर हजरत अमीन मिल्लत का भी नायाब खिताब होगा और भी दीगर हमारे मेहमानाने कराम है, उनके भी नायाब खिताबात आप समय बरगोश करने की सादतें हासिल करेंगे। डॉक्टर इकबाल साहब फरमा रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा, कि बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत। बहक के बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बाद महशर के उसी जन्नत की दावत है। और चला तो जाऊं जन्नत में, मगर ये सोच कर चुप हूं मैं आदम जात हूं, मुझको बहक जाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आदम जात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। हाज़िरीन मोहतरम, कहां से गुफ्तगू का आगाज करूं और कहां गुफ्तगू का अंजाम हो, कोई सिरा आप हाथ आने नहीं दे रहे। ये अफरा तफरी है। बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि नहीं मन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबान मेरी। ये कैसा दोस्तूरे जुबाबंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। उड़ा ली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंधलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, कि चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। टपक शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से सरापा दर्द हूँ, हसरत भरी है दास्ता मेरी। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब काबा अपनी मुबारक किताब कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिरा के पवित्र पर्वत पर है। 560 से 65 साल का अरसा जमीन से आसमान का रिश्ता टूट चुका है। जमीन से कोई नबी और कोई पैगंबर, आसमान से कोई नबी और कोई पैगंबर जमीन पर नहीं आए।
कोई भी ईश्वरीय संदेशा विश्व की मानवता को नहीं मिला, कोई भी पैगाम रब्बानी से जमीन पर बसने वाली इंसानियत रोशनास नहीं हो रही थी। तो हेरा के पवित्र पर्वत पर अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम, हिल्लो हरम की वादी और बतहा के शहनशाह सिराजुस सालिकीन, नबी अव्वलीन आखरीन, ताहाओ यासीन, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना, आप पर हजरत जिब्रील 563 साल के बाद जब आए हैं तो न कुरान की तफसीर में, न हदीस की तफहीमात में, न तारीख की किसी औराक में, न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में कहीं पर यह तज़किरा नहीं मिलता है कि जिब्रील जब आए हैं पैगंबर के पास तो पैगंबर से जमीन का हालो हवाल पूछा हो, या पैगंबर ने जिब्रील से यह पूछा हो या ये शिकवा किया हो कि जिब्रील अमीन 500 साल कहाँ थे। 500 साल पहले हजरत ईसा रूहुल अमीन के पास आया करते थे। 500 साल तक इस जमीन से आसमान का रिश्ता मुनक़ते हो गया, कोई भी रब्बानी पैगाम नहीं आया, कोई भी ईश्वरीय संदेशा नहीं आया, कोई भी अल्लाह का कलाम नहीं आया। मानवता तड़प रही थी, इंसानियत सिसक रही थी, टेरर फैल रहा था, आतंक अपना पांव फैला रहा था। आप कहाँ थे? लेकिन नहीं जनाब, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, किसी तफसीर की किताब में नहीं है, किसी तारीख के वरक में नहीं है कि नबी ने कोई शिकवा किया हो या जिब्रील ने नबी से कोई हालो अहवाल जमीन का मालूम किया हो। बल्कि जैसे ही जिब्रील रूहुल अमीन अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह बेकस पनाह में आते हैं तो सबसे पहले जो रब का पैगाम लेकर आए हैं वो पैगाम है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ऐ नबी आप पढ़िए। पहली आयत क्या नाज़िल हुई? आप बोलिए इकरा। पहली वही कुरान की इकरा। 10 मिनट में बात खत्म करूंगा। पहली वही इकरा। ऐ नबी आप पढ़िए। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ नहीं रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा। जैसे ही जिब्रील ने कहा अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम को, आखिरी पैगंबर आजम को कि नबी इकरा पढ़िए, नबी ने क्या फरमाया? मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। मा अना बिकारी, जब फाइल पर बाए चार्रा दाखिल हो जाए तो माना यूं देता है कि काम करना तो आता है लेकिन किसी वजह से नहीं करूंगा। अब इसका यह मतलब ले लेना कि नबी ने यह कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, सिरे से गलत है। नबी ने फरमाया मा अना बिकारी। तवज्जो चाहूंगा, तलबा भी है, उलमा भी है, ये सिलेक्टेड पर्सनैलिटी इसका मजमा है। जैसे ही जिब्रील ने फरमाया इकरा पढ़िए, नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। इसका मतलब कि नबी पढ़ना जानते थे लेकिन जिब्रील के कहने पर नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर बोलेंगे किसी को कि भाई किसी इंसान को पकड़े, आप बोले हम इनसे बोले मौलाना साहब आप हमारी गाड़ी चलाइए, तो मौलाना अगर चलाना जानते ही नहीं होंगे तो सीधे कहेंगे मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। लेकिन जब मौलाना ये कहेंगे मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं, तो इसका मतलब चलाना जानते हैं, कोई ना कोई वजह इसलिए नहीं चलाएंगे। तो पैगंबर आजम को जिब्रील रूहुल अमीन ने कहा कि नबी इकरा पढ़िए। नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कभी मशक्कत इलाही ये नहीं चाहती थी कि जिब्रील पढ़े तो मुस्तफा पढ़ने लगे। जिब्रील जब भी इकरा कहा, मुस्तफा नहीं पढ़ा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर जिब्रील के इकरा कहने से नबी पढ़ने लगते तो दुनिया कहती कि जिब्रील उस्ताद है, मुस्तफा शागिर्द है, जिब्रील प्रोफेसर है, मुस्तफा स्टूडेंट है, जिब्रील पढ़ाते हैं, मुस्तफा पढ़ते हैं, जिब्रील बताते हैं, मुस्तफा समझते हैं। इसलिए इस इम्कान को और क़यामत तक आने वाले ऐसे इश्काल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अल्लाह की मशीयत से खारिज कर दिया। अब नबी पढ़ नहीं रहे हैं। जिब्रील जब भी कह रहे हैं इकरा पढ़िए, नबी नहीं पढ़ रहे हैं, सीने से भींचते हैं और कहते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ महबूब पढ़िए उस अजीम रब का नाम लेकर जिसकी रब्बानियत, जिसकी फरजानियत, जिसकी समदानियत और जिसकी खलक़ियत ने आपकी तख्लीक फरमाई है और आपके सर पर पैगंबरी की कुलाहे किश्वरी रखना चाहती है, आपकी जबीन नयाज पे नबुव्वत का ताज ज़र्री सजाना चाहती है। तो पता चला कि जब जिब्रील ने अल्लाह की खलक़ियत की बात की है, उसकी रब्बानियत की दुहाई दी है, उसकी फरजानियत को वसीला बनाया है, अल्लाह की वहदानियत को का जब वास्ता दिया है तो
पढ़ते नहीं थे, पहले पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब पैगंबर आजम रुक नहीं रहे हैं, अब पैगंबर आजम पढ़ रहे हैं। क्या मतलब कि अगर जिब्रील खाली इकरा कहते और नबी पढ़ते तो फिर उस तालीम में अल्लाह की रब्बानियत और रब्बानियत की मार्फत शामिल नहीं होती। तालीम तो होती, लेकिन जब रब की मार्फत से खाली होती तो फिर आज दुनिया तालीम याफ्ता है। हम बताना चाहते हैं नबी ने अल्लाह के वसीले के बाद क्यों पढ़ा है, जब रब की मार्फत आई तब क्यों पढ़ा। दुनिया वालों को पैगंबर आजम ने ये पैगाम दिया है, ये मैसेज समय बर्दाश्त किया है कि दुनिया के लोगों, आज दुनिया के लोग तो अमेरिका हो या इजराइल हो, जर्मन हो या रशिया हो, फिर ग्रीनलैंड हो या हॉलैंड हो, दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं, जितने भी विकसित देश है, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, वो सब पढ़े लिखे हैं, अपने पढ़े लिखे होने का दावा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में उनका कोई मिसाल नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है, उनके कोई दूर दूर तक कोई उनके आस पास भटकने वाला नहीं है। अब बताइए दुनिया के लोग इतने आर्टिकुलेट हो चुके हैं, इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, चांद पर डेरे जमा रहे हैं, सितारों पे कीमंदर फेंक रहे हैं, खलाओं में तजर्बात कर रहे हैं, स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर आसार जिंदगी तलाश कर रहे हैं। दुनिया के लोग इतना तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि समंदर के सीने को चीर रहे हैं, उसके नीचे से सीपियां निकाल रहे हैं, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद इनकी तालीम याफ्ता तो हो चुके हैं, लेकिन इनकी तालीम में रब की रब्बानियत, उसकी फरजानियत और उसकी संतानियत की मार्फत शामिल तालीम नहीं है। इसीलिए तालीम हासिल तो कर चुके हैं, लेकिन वहशियत नहीं है, दरिंदा उतनी ही है कि आज तालीम ही की बुनियाद पर आइटम बम बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं और आसमान से जमीन पर ऐसी फिजाइयां हमले कर रहे हैं, इतनी बमबारियां कर रहे हैं कि कभी म्यांमार को बर्बाद करते हैं, कभी बर्मा को तहस नहस करते हैं, कभी अफगानिस्तान को मलियामेट करते हैं, कभी बोस्निया की आबरू नोचते हैं, कभी चेचेनिया को खत्म कर देते हैं। तो अगर दुनिया के लोग ये पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इनकी तालीम अल्लाह की मार्फत से खाली है, इसलिए पैगंबर आज़म ने क़यामत तक के लोगों को ये मैसेज दिया है, ये तसव्वुर दिया है, आपकी ये मेंटालिटीज को डेवलप कराया है कि दुनिया के लोगों, अगर तुम पढ़ोगे, अगर जिब्रील इकरा कहते और हम पढ़ लेते तो उसमें रब की खालिकियत और उसकी मार्फत शामिल नहीं होती, तो हम भी आसमान से जमीन पर आग की बारिशें कर रहे होते। लेकिन जो तुम्हें तालीम हासिल करनी है तो तुम्हें तालीम सिर्फ इकरा वाली हासिल नहीं करनी है, बल्कि इसमें रब का नबी खलाक, उसके रब की जब मार्फत का वसीला दिया जाएगा, रब की मार्फत के साथ जब तुम तालीम हासिल करोगे तो तुम आसमान से जमीन पर आग की बारिश नहीं बरसाओगे, बल्कि आसमान से जमीन पर तुम फूल बरसाओगे, क्योंकि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, अजमत रिसालत, नारे तकबीर। आज इस्लाह मुआशरा का भी प्रोग्राम है और जलसा दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है। क्या मतलब मुआशरे का इस्लाह कौन करता है, कैसे होता है? मुआशरे का इस्लाह नबीयीन ने किया है, रसूलों ने किया है, पैगंबरों ने किया है, नबीयीन के बाद सिद्दीकीन ने किया है, सालेहीन ने किया है, अइम्मा मुज्तहिदीन ने किया है। मुआशरे का इस्लाह किसने किया है? ये हमारे उलमा दीन है, ये मुआशरे का इस्लाह करते हैं। आप बताइए जनाब आली, क्या उस नबी जिस रसूल पाक पर ये पहली वही नाजिल हुई इकरा, आज उसी नबी का नाम लेने वाले, उसी नबी की शान पर, उनकी शौकत पर, उनकी अजमत पर, उनकी जलाल जमाल पर, उनकी मिसाल कमाल पर अपने लहू, अपनी रगों में बहते हुए लहू का आखिरी कतरा तक बहा देने का आज और हिम्मत रखने वाले और इसका बरमला इजहार करने वाले लोग इल्म से इतना कोसों दूर है कि आज मैं आपको बताऊं, न मिशन कमीशन की रिपोर्ट हो या इब्राहिम कमीशन की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो या और किसी दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मैनेजमेंट बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट हो, तो इन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 2% मुसलमान गरीब। यह अलमिया है। अगर हम 98% पढ़े लिखे होते, 2% नाखानदा होते, 98% अगर एजुकेशनिस्ट होते और
only 2% अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात थी, क्योंकि हम उस रसूल की उम्मत हैं कि जिस रसूल को किताब और कलम के साथ नबूवत थमाई गई है। और इस वही रब्बानी का ही वो असर हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन, इल्मी और एजुकेशनल इनकलाब दुनिया में लाया है। ऐसा इनकलाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लाया है कि अरब के वो अल्हड़ लोग, अरब के वो बुद्धू लोग, अरब के वो अरबी लोग जो बात बात पे लड़ते थे, झगड़ते थे, जिनकी तलवारें बेनयाम हो जाया करती थी और उस वक्त तक नयाम में नहीं जाया करती थी, जब तक पता नहीं कितने मासूमों और बेगुनाहों के खून से अपनी तशनगी न बुझाया करती थी। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम पर इस वही का यह असर हुआ कि ओनली अंडर 23 ईयर्स, सिर्फ 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में पैगंबर आजम ने उस मक्का और मदीने में, उस अरब में बसने वाले तमाम उन अरबियों को, उन देहातियों को, उन अल्लाह और बदियों को इतना मुहज्जब बना दिया है, ऐसा संस्कारी बना दिया है, इतना आर्टिकुलेट बना दिया है कि उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत भी मौजूद है, उसमें खत्ताब के अल्लाह बेटे हजरत उमर की सियासत भी मौजूद है और अदालत भी मौजूद है, उसमें अफ़ान के बेटे हजरत उस्मान की समंदरों की तरह बहती हुई सखावत भी मौजूद है, उसमें मौला अली हजरत अली इब्ने अली अबू तालिब की तरह बाबुल इल्म का दरवाजा भी मौजूद है, उसमें खालिद बिन वलीद जैसा चीफ आर्मी ऑफ कमांडर भी मौजूद है, उसमें हजरत अबू ज़र गफ्फारी जैसा और जर्नलिस्ट भी मौजूद है, उसमें हजरत साद इब्न अब्दुल वक्कास जैसा वक्त का अजीम सहाफ़ी भी मौजूद है, उसमें हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की तरह बेहतरीन सिपा सलार भी मौजूद है, उसमें सारे लोग मौजूद हैं, उसमें इब्ने मसूद भी मौजूद है, उसमें बिलाल भी मौजूद है। ये ओनली सिर्फ 23 साल का मुख्तसर सी मुद्दत थी कि पैगंबर आजम ने इन सहाबा कराम को इतना साहबे इल्म बना दिया, इतना बाबसीरत बना दिया, इतना शिक्षित और जानकार बना दिया कि इस्लाम मक्का और मदीने की वादियों से हामी की तरह, बादल की तरह उठा है और यूरोप के आसमान तलक ऐसा छाया है, ऐसा छाया है कि फिर दर्रे दानियाल से उठकर अलबरस की बुलंदियों तक और अलबरस से यूरोप के मेंबरों मारात तक से इस्लाम के बादल से जो बारिशें हुई है वहाँ इस्लाम की फसलें लहलहानी है, वहाँ इस्लाम की फसलें लहलहानी है, जिसको आज भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इस अंदाज में याद करते हैं कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो बिजली का कड़का हाँ या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक ही आवाज में सोती बस्ती जगा। बहुत अच्छे। आप उस पैगंबर आजम की उम्मत हो। आज आपका हाल यह है कि हमारे पास 57 कंट्रीज हैं, 57 ममालिक। 5 मिनट में बात खत्म करूंगा, बात समझिएगा, एक पैगाम सुनिए। 57 ममालिक, लेकिन जनाब 57 कंट्रीज सालाना ईयरली यानी पूरे साल में उतने ग्रेजुएट नहीं पैदा करती है जितना अकेले साल में मुल्क जापान पैदा करता है मुहक्किकीन, पीएचडीज। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं। जितना साल में सालाना मुल्क जापान अकेले जितने पीएचडीज पैदा करता है, हमारे 57 कंट्रीज मिलकर उतना ग्रेजुएट पैदा नहीं करते हैं। मुल्क जापान के पास जितना महफूज सरमाया है, हमारे 57 कंट्रीज के पास उतनी दौलत नहीं है। आप सोचिए कि आप कहां पहुंच गए। पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये वही नाजिल हुई, लेकिन आपने पैगंबर आजम के मिशन को, पैगंबर आजम के विजन को, नबी पाक की तहरीक को, नबी पाक की तंजीम को आपने समेट दिया है, नबी पाक की तंजीम को आपने सिकोड़ दिया है। आप कहते हैं नबी मेरे हैं, वो कहते हैं नबी उनके हैं। अरे मैं बताना चाहता हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पर, उसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को मुतनाज़े बनाया है, जिनकी जात जमीन पर रहमत बनकर आई है, बरकत बनकर आई है, नेमत बनकर आई है। अब पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के लोगों नबी पाक की तंजीम को, नबी पाक की तहरीक को, नबी पाक के मिशन को, नबी पाक के विजन को अपने मशरब में, अपने मसलक में, अपनी जात में, अपनी जमात में, अपनी मेंटालिटी में कैद कर मुक़य्यद करने का गुनाह करने वाले पापियों, कान खोलकर सुन लो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीक इसलिए नहीं आई थी कि तुम किसी खास नजरिए में नबी को समेटने की कोशिश करोगे, बल्कि रब पाक, नबी पाक खुद पूरी दुनिया की इंसानियत को मुखातब करके कहते हैं, नबी आप कह दो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, हम संसार जगत में बस्ती में बसने वाली तमाम
किताबें हिदायत लेकर आए हैं। हम चाहे वो कम्युनिज्म से ताल्लुक रखते हो या कैपिटलिज्म से ताल्लुक रखते हो, वो लिबरलिज्म से ताल्लुक रखते हो या बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हो, दुनिया के किसी भी इज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हो, हम सब के लिए आखिरी रसूल हिदायत है। और जो किताब कुरान लेकर आए हैं वो आखिरी किताब हिदायत है, जो हुदल लिल आलमीन है, पूरी विश्व की मानवता के लिए वो आखिरी मार्गदर्शक है, सबके लिए लास्ट गाइड बुक है, सबके लिए आखिरी किताब हिदायत है, सबके लिए मूल मंत्र रखती है, सबके लिए फार्मूला रखती है, सबके लिए निजाम हयात रखती है, सबके लिए निजाम जिंदगानी रखती है और सबकी क़यादत करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तो कुरान जिस रसूल पर आया है वो रसूल भी लाजवाब है और जो कुरान आया है वो कुरान भी लारैब है। कहने की बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीक को और नबी पाक की तंजीम को, नबी की तहरीक ही तो कुरान है, नबी की तहरीक को किसी खास मसलक में समेट देने का पाप करना छोड़ दो। इससे बड़ा इस जमीन पर न कोई आतंक हो सकता है, न दहशतगर्दी हो सकती है, न कोई टेररिज्म हो सकता है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा नबी पाक की तंजीम पर, नबी पाक की तहरीक पर और कुरान की एक एक शीट पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। खूब की सहरे चमन बाग चूली शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।